What are the challenges in setting up a firm? How to manage it? I think the challenges are huge because I think firm का नाम establish करना सबसे easy काम होता है प्रतापन को, but उस कंपनी में काम लेके आना, उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना, ये इंश्योर करना कि ये इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग. What are mental challenges do lawyers face? Oh, a lot of them. Burnout, handling the clients. You know, I think we hardly get sleep. Sleep is a huge issue. You know, actually, a lot of people think that I'm a social media influencer. I have no intention of being an influencer. I think I can be a de-influencer. Not really an influencer. I only like to share my life. You know, I've been through a lot of struggle in my life. Hello everyone. So आज के जो गेस्ट हैं मतलब she is very special in her own journey, in her own way, because someone who is making content, someone who is actually mentoring a lot of law students with her content, with her guidance. She is helping a lot of students out there, and her work is top notch, and that can be seen by the firm easily by the firm Pratap and Co. And she is none other than Pallavi Pratap. You might have seen her on Instagram, on LinkedIn, from an investment banker to the AOR in the Supreme Court of India, from a mentor to the content creation and actually working it out very well. Let's look into her journey. Let's understand what were her challenges and how she overcome it. And please do watch the whole video. Thank you so much. Hello and good evening everyone. Welcome to another episode of Vakil Vani. So today we have with ourselves a very special guest. शायद आप लोगों ने पक्का मैम को लिंक्डइन, इंस्टाग्राम कहीं या फिर सुप्रीम कोर्ट में तो पक्का ही देखा होगा. A person with a very jolly face, always greeting and meeting others. A person who always shares on Instagram and LinkedIn her victories, her heartbreaks, her hustle and all the things related to law. Let's welcome Pallavi Pratap. Thank you so much, Sima, for having me here. And hi, everyone. इन्होंने मुझे jolly LLB already बोल दिया है. I have a jolly face. So I hope you'll enjoy the conversation that both of us are going to have just now. Yeah. So starting it, ma'am. So I was going through your LinkedIn and Instagram, trying to understand from where you come from. So, ma'am, financial background, history background, investment banking, and then law. Like, why was that transition from financial to law? It was just very funny because I come from UP. सो यूपी में वो फंडामेंटल राइट होता है आपका 4 साल का कि यूपीएससी तो क्लियर करना ही है, पीसीएस का एग्जाम देना ही है, नहीं होगा तो पीसीएस जे का एग्जाम निकल जाएगा. यू नो लाइक यू हैव दीज ऑल्टरनेट करियर चॉइस, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए. सो देयरफॉर मेरे पिताजी का भी वही एम्बिशन था कि नहीं, मेरी बेटी को कम से कम सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए. तो आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज में ये हुआ कि हमारे ज़माने में उस समय 4 अटेम्प्ट मिलते थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. तो एक हिस्ट्री जो है, हर व्यक्ति जो है हिस्ट्री ज़रूर लेता था. सो आई हैड हिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. इजी था क्या हिस्ट्री? आई थिंक ईजी तो कभी भी नहीं था हिस्ट्री, बिकॉज इट वॉज वेरी इतनी सारी तारीखें आपको याद करनी पड़ती है. नाउ आई एम एक्चुअली इन दैट तारीख वाला बिजनेस ऑल्सो. बट it was quite interesting actually. If you look at it as a student of history, I have felt that लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जो आपकी होती है ना, इट्स ऑल्सो लाइक अ टाइम लाइन. वो पूरी क्रोनोलॉजी से ही चल रही होती है. जिस तरीके से हम इतनी सारी चीज़ें यू नो ओवर द डेकेड्स और रादर ओवर द सेंचुरीज जो हम देखते हुए आए हैं. सो इट वॉज because of that I did history honors from Jesus and Mary College. It was fun, 3 years of pure fun. And then I did my law as a side hustle. It was कि भाई अब आप यूपीएससी की तैयारी करें तो एक सेकंड डिग्री ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, तो वकील बनना अच्छी चीज़ है. तो आई थॉट कि चलो वकालत कर लेते हैं. I finished my law and by that time the UPSC I could not clear. So then my father said that why don't you go abroad, study, do your MBA or something, so that when you come back at least you'll have some kind of a professional degree with you. और UPSC देते देते ना आप इतना आई थिंक इतना मोटिवेशन आपका लो हो जाता है, क्योंकि सेम कोर्स को आपको हर बार पढ़ना होता है. हर साल आप वही सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर आपका नहीं हुआ, फिर सिरे से शुरू किया, फिर से पढ़ाई की, फिर नहीं हुआ, तो एक वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है. तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक यू नो
below the belly button of an 18-legged centipede. I thought कि मैं बहुत ही ज़्यादा depressed हो रही हूँ, तो अच्छा है चलो चल के MBA कर लेते हैं. I went for my MBA. I did it in Australia. I did it in finance, and then I did my research in France. Dijon में मैंने अपना research किया, और उसके बाद I came back to India, started working here. Started to work in an investment banking firm. It was very good. I mean, all of this was going on. अच्छा था. It was a very hustle culture. सुबह जा रहे हैं, सुबह वाली flight से, रात last flight in. Proper corporate culture. Proper corporate culture. You dress like that. You're doing things. You're meeting people. You know, you're speaking in your fancy English, trying to figure out कि अच्छा हाँ ये this is what is happening. You know, those intellectually vibey वाला जो system होता था. But as always, life happened. And because life happened, somehow I became an accidental lawyer. And 2010 is when I started my practice. It was like, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, एक लीगल नोटिस भी शायद आपको ड्राफ्ट करने नहीं आती है, आपने वहाँ से स्टार्ट किया. एंड वो धीरे 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 करके नाउ आई एम रनिंग छोटा सा लॉ फर्म विच हैज़ ऑफिस इन दिल्ली, बॉम्बे. वी आर वर्किंग इन डिफरेंट अदर सिटीज़ ऑल्सो. सो इफ आई लुक बैक इट फील्स लाइक वो एक दूसरा ही एवतार था, एंड दिस इज अनदर एवतार दैट आई हैव. I was coming to this only, ma'am, कि जैसे now you handle the whole firm, Pratap and Co, the name of the firm. What are the challenges in setting up a firm? How to manage it? I think the challenges are huge because I think फर्म का नाम इस्टेब्लिश करना सबसे इजी काम होता है. प्रताप एंड को वेबसाइट का डोमेन रजिस्टर कराना सबसे इजी काम होता है, बट उस कंपनी में काम लेके आना, उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना, ये इंश्योर करना कि ये एक इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स नॉट अ वन ऑफ थिंग, इट इज़ समथिंग दैट यू हैव कमिटेड टू एंड दैट यू गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर working towards it. My actually good thing was that because in my initial years, when I came back from Australia, I was working with a lot of startups at that time, and that was the time when startups का boom होना शुरू हुआ था 2008 में. Angel investments had started to come. People were bootstrapping and doing new things. तो वो एक अलग ही दौर था जब लोगों ने नया नया स्टार्ट किया था कि that was the time also ना जब ओला ये सब मतलब अनुपम मित्तल he was also working, हाँ 2010 to 2008-10 के आसपास आप देखोगे कि मैक्सिमम जो बढ़िया वाले जो अभी तक चल रहे हैं वो सारे स्टार्टअप सॉर्ट ऑफ उसी टाइम में स्टार्ट हुए थे. तो एक अंदर से जज्बा रहता था कि नहीं एक काम करना है, यू नो आई नीड टू हैव माई नेम इन सम like how they show it in the suits के पीछे नहीं दिखाते हैं वो इतना बड़ा सा नाम लगा हुआ है, तो वो एक मेरे को भी अपने लिए नाम चाहिए, the visiting card holder should have my name and the letterhead should have my name, all of that. So लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको काम लेके आना है, आपको इंश्योर करना है कि आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग उतनी ही शिद्दत से काम करें जितनी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं. एंड टच वुड, आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड that I have found, I think, the best of people. I think all of us come across थोड़े से ऊपर नीचे टाइप के लोग, but most of the time I came across really good people. And mostly what I do is I have people who are freshers because they don't come with any baggage as such and they are so keen to learn कि उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, आपको सीखने को भी बहुत मिलता है. That new mind and वो थोड़ा सा रहता है. मैम एक चीज़ I was discussing in one of the podcast only with one of the guests. So he had that notion कि as a lawyer, what is more important is how to get the client than actually to complete the work. To actually keep the law firm running. Correct. So what is your view on that? That is actually true because if you don't have the clients, how will you keep it running? It's very difficult to float it. But I've also realized that clients are not going to just walk in through the door. Yeah, it's not that they'll see my name and they'll be like, oh, Pallavi Pratap ke paas jana hai. ऐसा नहीं होगा. They will go, they will speak to, and in Supreme Court practically जो भी क्लाइंट होता है वो एक लोअर कोर्ट के वकील के पास जा चुका होता है, एक हाई कोर्ट के वकील के पास जा चुका होता है, फिर वो आपके पास आ रहा है. तो 60-70% वकील जो है वो रेफरेंस भेजते हैं कि अच्छा ये आप इनके पास चले जाइए, वो बहुत अच्छी वकील है, या उनके पास चले जाइए. एंड
दैट टिपिकली यू विल सी कि जिनकी फैमिलीज में चल रहा होता है उनके पास वो ईजियर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन लॉयर को वो चीज़ खुद बनानी पड़ती है, लोगों से मिलो, और क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ खास क्रेडिबिलिटी होता नहीं है दिखाने के लिए, इट्स लाइक मेरी माँ जो है हमेशा कहती है मुझसे कि तुम्हारे प्रोफेशन में तो ये है कि रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी निकालना है, सो इट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील एवरी सिंगल डे, एंड जस्ट वेटिंग कि किसी दिन वो कुआं खोदते हुए एक्चुअली वो नहर या नदी हाथ लग जाएगी या फिर होता तेल नहीं का है। कुआं निकला। कभी नहीं होता। आई डोंट थिंक दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल हमारे प्रोफेशन में। ये आई रिमेम्बर जब मैं AOR बनी थी तो एक मेरे से सीनियर AOR थे, तो उनसे ऐसी मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पल्लवी ऐसा भी होगा कि 15-15 20-20 दिन एक भी मैटर नहीं आएगा, तो डिसहार्टन नहीं होना है, आपको इंतज़ार करना है कि वो जो आपका मैटर है वो कब आएगा। हो सकता है महीना भर लग जाए, हो सकता है 1.5 महीना लग जाए। तो इनिशियल जो साल होते हैं आपके ना, वो जो 8-10 साल जिनको हम कहते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम में आपके पास बहुत कम काम होता है, लेकिन वही जो आप अपने क्लाइंट्स का बेस बना रहे होते हैं, वही आगे आपको 8-10 साल के बाद वो काफ़ी, हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक हमारे यहाँ पे एक सीनियर AOR हैं, वो हमेशा कहते थे कि पल्लवी अगर एक केस तुम्हारे पास आ रहा हो, तुमने उसको अच्छे से डील किया है, तो वो आदमी आपको 2-3 साल में एक और केस दे के जाएगा। और ये मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अगर आपने अच्छे से किसी का भी केस किया है, वो हार जीत एक अलग चीज़ होती है, बट एक कस्टमर का, क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन होता है, वो अगर है तो वो आपको ज़रूर एक केस दे के जाता है। So दिस हैपेंस एंड दैट्स हाउ यू नो दैट व्हाट यू कॉल इट, इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, काम से काम कंपाउंडिंग इफेक्ट होता रहता है। करेक्ट। So I think like with that lawyer also my views did not match. I was more of a opinion कि काम जो है वो आ जाएगा, क्लाइंट आ जाएगा, लेकिन अगर मेरे पे अभी चाहे एक क्लाइंट है, अगर एक साल भी एक क्लाइंट है, मैं एटलीस्ट उसका काम तो अच्छे से कर पाऊँ, जी। तब वो अपने आप देगा। बट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट जनरेशन लॉयर, a women lawyer in that to outside of Delhi. So क्या challenges रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई थिंक द फैक्ट दैट आई बिकेम एन AOR दैट गॉट अ लॉट ऑफ वैलिडिटी। मतलब मुझे 2017 में मैंने एग्जामिनेशन दिया था 2016 में, 17 में रिजल्ट आया था और मैंने AOR का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो आई थिंक दैट गेव अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी बिकॉज पीपल रियलाइज कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तो वो काम थोड़ा इनिशियली आना शुरू हुआ। और जब वो इनिशियली आया तो उस वक्त मैंने काफ़ी सारे लोगों के, जब तक मैं AOR नहीं थी तब तक मैंने काफ़ी ट्रांसलेशन का काम किया। कई लोगों की ड्राफ्टिंग ऐसी 2-3 हज़ार रुपये में ड्राफ्टिंग करके दे दिया। किसी ने कहा डिफेक्ट जाके रिमूव कर दो, तो जाके डिफेक्ट रिमूव कर दो। ऑल ऑफ दोस मिनियल टास्क जिसको कहते हैं, वो सब मैंने बहुत किया। और आई थिंक उसकी वजह से मेरा AOR क्लियर हुआ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्रोसीजर काफ़ी समझ में आ जाता है। और दूसरा ड्राफ्टिंग और ट्रांसलेशन की वजह से जो मुझे लगता है वो ये कि प्रोसीजर समझ में आया कि ट्रायल कोर्ट्स में क्या प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि आप ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स को टिपिकली ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। और दूसरा आपको ये समझ में आता है कि हर केस एक नया तरीके से आप देख सकते हैं। यू मे फाइंड दैट 100 बेल एप्लीकेशन एक जैसे ही ड्राफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन 100 बेल एप्लीकेशन में जो ऑफेंस है वो डिफरेंट है, या हो सकता है कोई रिकवरी डिफरेंट तरीके से हुई हो, या वो कौन से स्टेज पे बेल है, ऑल ऑफ दैट। तो आप इतनी चीज़ें सीख जाते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं काफ़ी AORs की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक ज़माने में जब मैं स्टार्टिंग में AOR बनी थी तो AORs से ही सराउंडेड ज़्यादा रहती थी, और वो लोग काफ़ी सीनियर AORs थे। तो एक ऐसी सज्जन थी, उन्होंने मुझे बोला कि ड्राफ्टिंग करने में बहुत घबराहट होती थी इनिशियली कि अच्छा। पता, बिकॉज आई डिड नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, इतना मुझे ड्राफ्टिंग आती भी नहीं थी अच्छे से। SLP की और सिविल अपील की तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो वो ये कहते थे कि जिस दिन आपने 500 मैडम ड्राफ्ट कर लिए ना, आप आँख बंद करके ड्राफ्ट करोगे। एंड मुझे लगता है वो 500 तो खैर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, लेकिन आप 50-60 ड्राफ्टिंग कर लो तो यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट गैमेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्टिंग। ओके। और अपील्स की वजह से या सुप्रीम कोर्ट में सारे लोअर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स इतने सारे आते हैं कि आप सब कुछ सीख जाते हो। आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। So
in the Supreme Court only right now, ma'am, AOR the almost हर साल काफी बन रहे हैं. हाँ 350 तो पिछले साल ही थे. हाँ मतलब like every year. So do you think मैम इसकी वजह से actually AOR की quality थोड़ी सी कम होती जा रही है? I don't think Quantity तो बहुत बढ़ रही है. no Quality doubt. का तो I don't think I will actually comment upon it because we are all governed by Supreme Court rules. तो हमें उस रूल के दायरे में ही काम करना है, उससे आगे या बाहर नहीं जा सकते. और ऑनरेबल जजेस भी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी हमें डांट के रखते हैं. तो a lot of time कि that the AOR should check the file, should be correct. present there. But वही ना, क्योंकि since the quantity is increasing, actually nowadays most of the AORs are just sign, ठीक है आप लोग कर लो, just sign and आप a लोग. lot of them do that, but I think अभी भी maximum AORs वही हैं जो कि अपने मैटर्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं और कुछ जाके आर्ग्यू भी कर रहे हैं. तो ये आई थिंक एक थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूर आया है उस चीज़ में. बट हैविंग सेड दैट अभी भी ऐसा होता है कि कभी आपके पास किसी बड़े वकील की ड्राफ्टिंग आई है लोअर कोर्ट से या कहीं से भी, आई एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि अगर कोई मुझे कह रहा है सिर्फ आप फाइल करो तो मैं वो नहीं करती. आई सो मेनी टाइम्स आई थिंक पीपल हैव आस्क्ड मी टू डू इट. आई डोंट डू इट अनलेस एंड until I've seen what is there. Is it the right proposition? Do I really want to do it or not? If I feel for even 1 second that this is not the right thing to do, I will say no. It doesn't bother me that, you know, my relationship with that person will get screwed or anything like that. And a no is a no, and a no is a complete sentence. I don't have to even explain myself. That is good. But yeah, so I think that's been the case so far. और क्वांटिटी बढ़ने से एक चीज़ ज़रूर हुई है कि काम भी अफेक्ट हुआ है, सबका ही Divide हाँ, भी काफी क्योंकि इतने सारे लोग हो गए तो ऑब्वियसली फाइलिंग तो उतनी ही है. इट इज गेटिंग Correct. So for example अगर कोई AOR 25,000 ले रहा है, रफ फिगर अगर हम लेके चले, तो वो जो नया इंट्रेंट आया है, नया AOR आया है, वो शायद वही सेम चीज कर देगा 5,000 के अंदर. 5,000 में मुझे नहीं लगता नहीं, कोई I'm just giving an example. but I हाँ, don't मतलब think कि कि इतने कम में कोई करेगा. हाँ मतलब 10,000 और मे बी 15,000 XYZ. I'm saying just even sign करके अगर for example अगर मैं That is a wrong practice. Signing will never be a good practice for anyone, and I will not recommend anyone to do just signing business. Please don't do that. Read your draft because your name is what is going before the judge. फाइल जब खोलते हैं ना जज साहब, तो उसमें सबसे ऊपर आप ही का नाम दिखाई देता है. और आप कितनी बार देखेगा जब फाइल फ्लिप करते हैं तो जो जज साहब होते हैं वो फाइल ऐसे वापस देख के देखते हैं कि AOR का नाम क्या है. Correct. So I think that is your branding, and you have to live up to your branding. So you make sure that at least you are true to your brand. I think that's important. मैम आपने कई बार वुमेन राइट्स के ऊपर काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग आपके व्यूज़, और यू हैव ऑलवेज हेल्ड अप टू दैट साइड. Have you in the Supreme Court faced any kind of restraint in your initial years because की women side, या क्योंकि काफ़ी male dominated litigation रही है काफ़ी जगह पे? मुझे जहाँ तक लगता है कि by the time I think I was one of those lucky people, क्योंकि जिस समय से हम लोग आने लगे ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी. इफ़ आई रीड जस्टिस लीला सेठ की बुक, तो अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कई बार इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है कि कैसे उनको इतनी प्रॉब्लम हुई. बट आई थिंक यू नो बिकॉज हमारे से पहले जो लेडीज़ थी जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया, उन्होंने दे पेव्ड द वे फॉर अस. सो नाउ व्हेन वी ट्रेड, एंड नाउ ऑब्वियसली पीपल हु आर कमिंग आफ्टर अस, उन लोगों के लिए भी आई थिंक इट्स बिकमिंग ईजियर इन दैट सेंस. And we've become assertive in our ways. We are assertive in, you know, how we want to argue. और पहले I'm sure बहुत सारी लड़कियां डर जाती थी, but अब मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डरता है. People will go and speak up their mind. So I think that's a very good shift that has happened. The other thing that I've noticed is that पे पैरिटी अभी भी नहीं है. As a woman, what a man can actually ask for, I will probably not be able to ask for that. It's still there. It's there. I can vouch for it. I mean, आप seniors में से फीस देख लीजिए, चाहे आप AORs की फीस देख लीजिए, you will see that discrepancy exists. That pay parity discrepancy is 100% there. तो वो चाहे भले ही, आई एम नॉट सेइंग दैट मेरा काम बहुत अच्छा होगा किसी मेल लॉयर से, बट आई एम ऑल्सो पुटिंग इन आई थिंक अ वेरी गुड एफर्ट. सो
it's the fees at least should be the same, but ऐसा होता नहीं, it doesn't work. Clients still have that notion Yeah, कि यार they ये do. female lawyer है, ठीक है इन्हें तो इतने में ही ऐसा. हाँ, obviously, अगर you know, if you are not traditional looking also. I mean, if I prefer to wear a pant and shirt, but if you know, a lot of people come and tell me आप साड़ी पहनो, you know, you look like this, or you know, things like that, which is a very normal mindset also. So you know, they say that, you know, you can get more fees and all of that, but I think we must just always be true to ourselves. Correct. This is who I am. You like it or you don't like it. That's all. आप मुझे मेरी मेहनत का पैसा दे दो, आप मतलब मुझे कैसा, किसी makes और sense. चीज़ का तो दे दो. Correct, yeah. So सुप्रीम कोर्ट या फिर मैम कोई भी और कोर्ट के अंदर प्लीज शेयर वन ऑफ योर केस, मतलब वेयर मे बी अ फनी केस यहाँ पे जहाँ पे यू आर लाइक यार ये कैसे एकदम से हो गया. ऐसे तो बहुत सारे केसेस रहे होंगे मेरे ख्याल से. अब तो इतना ध्यान भी नहीं रहता, बिकॉज मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ फ़नी हर हफ्ते होता ही रहता है. और कभी कभी ये भी आपको दिखाई देता है कि कई सारा हार्ट ब्रेक भी होता है. ऐसा नहीं है कि शेयर वन ऑफ योर हार्ट ब्रेक वाला केस. आई डोंट नो, बट या हार्ट ब्रेक आई थिंक होता है, कई बार होता है. आप कितनी बार देख रहे होते हो कि यू नो इट्स अ गुड केस, यू आर्ग्यूड रियली वेल, यू पुट इन सो मच एफर्ट, बट मे बी द लॉ इज़ नॉट विथ यू, और यू नो इट्स अ वेरी सेटल्ड लॉ जिसको कि आप प्रिंसिपली चेंज नहीं कर सकते. तो उन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस वाइज तो अगर कहा जाए तो मैंने इतने सारे अलग अलग तरीके के केसेस किए हैं, और मुझे हमेशा यही लगता है कि हर केस की किस्मत है. ये एक हमारे लखनऊ में एक वकील साहब थे, वो हर वक्त यही बोलते थे कि ये हर केस की एक किस्मत है. तो अब पहले तो मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं हो सकता, केस की किस्मत क्या हो सकती है, हमने मेहनत की है, हम अच्छा काम करेंगे तो हम जीतेंगे. लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है कि ये केस एक अलग तरीके से चल रहा है, आपको लग रहा है आप बिल्कुल जीत जाएंगे, आपने अपने रिटन सबमिशंस भी दे दिए, जज भी आपके साथ था, लेकिन जब जजमेंट आया तो वो उल्टा आ गया. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत आपको दिल को ना बहुत मजबूत करके वकालत करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी अप्स एंड डाउन्स होते हैं इस प्रोफेशन में. आई थिंक यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट. या कमिंग टू दिस ओनली, what all mental challenges do lawyers face? Oh, a lot of them. Burnout, handling the clients. You know, I think we hardly get sleep. Sleep is a huge issue. और कई लोग तो मुझे लगता है क्योंकि वर्कआउट नहीं करते या खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, तो those things also affect your life so much. किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, किसी का BP हाई है. I mean, people who are just about my age will have so many issues. So I think those are challenges which are there. Mental health issues तो बहुत ही ज़्यादा हैं. How do you deal with the burnouts? I think I've just become used to it now. मतलब used to it in the sense Is it that not bad कि like we are getting used to it's a very bad thing. Very bad thing. I think, you know, as a matter of fact, Instagram पे I don't know, I had posted something, and some young girl who had commented on it saying कि आप, you know, you are promoting burnout. And I was actually taken aback, but I actually realized that's true. कि maybe, you know, in my way of doing it, I may be promoting burnout. I'm the kind of person who doesn't like to take a holiday, and for me, I like to work every day. और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आज सैटरडे, आज सुबह मेरी 8 बजे से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, अभी आई एम विथ यू, एंड देन आई हैव टू फिनिश ऑफ अदर वर्क. आई विल नॉट बी सिटिंग इन द ऑफिस. आई मीन, इफ़ यू आस्क माई जूनियर्स, दे विल टेल यू कि मैम तो ऑफिस में बैठी नहीं होती है. आई एम नेवर इन द ऑफिस. आई डोंट सिट इन द ऑफिस. आई कांट वर्क देयर. मतलब मुझे बहुत मुझे ये लगता है कि इतने सारे लोग अभी मुझसे डिसीजन मेकिंग के लिए सवाल पूछने वाले, मैम इसमें क्या करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या करना है. सो आई एम वेरी गुड विद माई व्हाट्सएप. मैं उसी पे सबको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, बट आई नीड माई अलोन टाइम. सो मैम, बर्नआउट के लिए एज यू जस्ट सेड कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठीक है आपके पास तो एक प्रॉपर रूटीन है, यू आर फॉलोइंग इट. सो डू यू ऑल्सो डू सम मेडिटेशंस, वर्कआउट एंड ऑल? वर्कआउट तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ करूँ. आई थिंक फॉर द पास्ट 7 years आई हैव बीन वेरी रेगुलर विद इट. अभी इधर 1 महीने से समहाउ दैट हैपेंस एक्चुअली. आई थिंक 2-3 महीने आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, एंड देन 1 month का एक लल आ जाता है बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज यू नो यू नॉट फीलिंग वेरी गुड, थिंग्स लाइक दैट. मेडिटेशन तो मैंने
बहुत कोशिश की कि मैं अपने दैट ब्रेन उसको मैं काबू में करके आई कैन मेडिटेट, बट समहाउ मुझसे होता ही नहीं. मैंने बड़ी कोशिश की मेडिटेशन करने की, 5 मिनट 10 मिनट ट्विन हार्ट मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, मतलब हर तरीके का मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन मुझसे हुआ नहीं. सो आई थिंक आई एम अ वेरी maybe I should actually focus more on meditation, शायद तब हो जाए, but अभी तक तो नहीं हो पाया. So apart from law, how are you using your time? LinkedIn और Instagram वाले पे will be coming That, apart from that. LinkedIn and Instagram, actually a lot of people think that I'm a social media influencer. I have no intention of being an influencer. But I think I ma'am can is. be a de-influencer, not really an influencer. I only like to share my life. I've been through a lot of struggle in my life, and the reason why I speak about it is because I want that जो लोग भी कोई सुन रहा है, और कितनी बार मैं मैसेजेस देखती हूँ जो कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे रोज़ आते हैं, और उसमें कोई ना कोई मुझे ज़रूर बोलता है कि आई नीडेड टू हियर दिस टुडे. और मुझे लगता है कि हाँ, जो ख़राब लोगों के मैसेजेस आए हैं उसको अगर इग्नोर कर दिया तो वो एक मैसेज जो है उसने दैट हैज़ मेड माई डे, आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट. And this actually started during COVID time. Okay. So at that time, all of us had so much time in our hand. So matters हो जाते थे, उसके बाद you had something to do. So you were reading something, and then I used to think कि नहीं यार, इसको let's just put it on a reel, or maybe let me just make a LinkedIn post. And people started to appreciate it. उसके बाद the reopening of the world happened, COVID खत्म हुआ, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता था कि ये सब चीज़ें कर सकें. बट नाउ आई बीन मेकिंग अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी, जो भी स्ट्रगल मैंने झेला, अगर मैं सब लोगों को बता सकूं कि इस स्ट्रगल के पीछे भी एक दुनिया है जो कि बहुत खूबसूरत है, सो इफ़ दे कैन एक्चुअली फील मोटिवेटेड, आई विल फील दैट माई जॉब इज़ डन. That is only if you're comfortable. And would you like to share the kind of struggle and कैसे आप उससे victor? Only if you're comfortable. No, I don't mind. I think everywhere it is quite an open book. But I've had a very difficult marriage. I got divorced. I couldn't have kids. It was a very difficult time of my life. I think I overcame that. I was very fat. I was like double the size of what I am just now. Workout तो मतलब एक was not something that I ever thought कि मैं अपनी life में कर पाऊँगी. There was a time that I couldn't even walk properly because I had so much issue with the knees. इतना weight बढ़ गया था because of hormone therapy when you were trying to have kids through IVF. तो life बहुत ही मेरी life हमेशा ऐसी रही है. कभी the big huge speed breakers that come and suddenly एक गड्ढा आ जाता है and I'm inside, and then I have to just struggle to get myself out of it, and then again I'm running and फिर again एक गड्ढा आया, फिर मैं उसमें गिरी, फिर उससे बाहर निकलना. So I think just as anybody's life is, ये उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरी लाइफ में. But really, I'm proud of you because, as I said in the beginning of the podcast, one of the most jolly persons, and I'll share with everyone. Jolly LLB. Like, I texted ma'am a lot of time for the podcast, but it was not possible. Maybe I was texting the wrong business number. I think so. Yeah, maybe from Instagram, but एक दिन मतलब I was there at Supreme Court. I'm just telling everyone. This was just 2 weeks back, I think. 2 weeks back, I was running through for the matter and I saw ma'am. I greeted her. She greeted me. I actually went आगे मैं चला गया था. And then I came back and like, this is an opportunity, Simar. Please try. And he had this very cute little, headphones on. And I was like, ये तो मैंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में देखा है, कोई बिल्कुल मस्त एकदम चला जा रहा है, हेडफोन लगाए, This doesn't really happen. He was looking very cool, and this was like early in the morning, around 10 o'clock. Yeah, 10. Court had not started then. And then he comes back and he says to me that, I run this podcast and would you like it? I'm like, wow, this is just so cute. So, and that's how, and तब से like I knew journey of ma'am, मतलब जितना भी I have gone through the Instagram and everything, and I really wanted to talk and really ma'am, we get inspiration because I want to understand, ma'am, what drives you, like this positive aura, this energy, how? इतना positive रहता नहीं है रोज मतलब इसके लिए so the truth is that during the day also I will have my ups and downs. मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा, फिर अचानक से मोटिवेशन में बिल्कुल ही डिप आ जाएगा. सो these things happen. I think also with age it happens. Being a female, there are hormonal problems that you have, and I think
ये भी होता है कि आपका एक डोपामीन रिफ्लेक्स होता है, मतलब कि कुछ बहुत अच्छा हो गया, अचानक से एकदम हाई हो गया, अब वो थोड़ी देर में तो नेचुरली कम हो जाएगा, तो जैसे ही वो कम होगा तो फिर आपको फिर से अपने को मोटिवेट करना है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है. सो आई थिंक एक कांस्टेंट पुश आपको देना पड़ता है एवरी सिंगल डे. एंड फॉर मी इट्स नॉट आज सैटरडे है तो मैं नहीं कांस्टेंट पुश करूँगी, आज संडे है तो नहीं करूँगी. मेरा रूटीन ही यही है कि मैं रोज़ काम करती हूँ. I have to work towards my firm every single day. मेरे दिमाग में भी वही चल रहा होता है कि अच्छा इसका ये करना रह गया, अच्छा उसका वो करना रह गया, अच्छा ऐसे कर सकते हैं तो ये क्लाइंट आ सकता है, या इस तरीके से करना चाहिए, कौन से जजमेंट के ऊपर लिखना चाहिए, यू नो ऑल ऑफ दैट. सो मेरा दिमाग शायद 60-70% ऑफ द टाइम्स वही चल रहा होता है काम के ऊपर. एंड ऑल्सो अगर जैसे टिपिकली लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं या प्राइम वीडियो या यू नो OTT करते हैं, वो मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती. बट मेरी बिंज वॉचिंग कई बारी होगी, जैसे कि आई विल सी द डायरी ऑफ अ CEO, या वेरी नाइस पॉडकास्ट. सो आई विल सी नेवल रविकांत एंड व्हाट इज ही सेइंग अबाउट लाइफ एंड यू नो हाउ वर्क शुड बी. या आई विल यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सेल्फ हेल्प वाला जो सेगमेंट है. कई लोग मुझे कहते हैं कि यू नो इट्स उसको भी इसका सेल्फ हेल्प का भी आजकल एडिक्शन लोग कहने लगे कि आपको सेल्फ हेल्प का एडिक्शन. आई थिंक मतलब आई विल बी आल्सो वेरी ऑनेस्ट, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स बट आई अवॉइड, मतलब आई माइट बी बायस्ड हियर बट आई अवॉइड द इंडियन राइटर्स वाली बुक इस पूरे, और इंडियन राइटर्स या इंडियन जो रील बना रहे हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा टॉक्सिक सेल्फ हेल्प हो रहा है. This is what I believe. पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया. But Diary of CEO, Neval Ravikant, इन लोग, Robin Sharma, like I read a lot of them. I don't know. मैंने मतलब इंडियन ऑथर्स का या इंडियन लोगों का मैंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, which is not something that I've done consciously. But शायद मेरी वो फीड में ही वही वाले एक के बाद एक आ रहे होंगे कि मैंने उन्हीं को देखा है. बट मेरे को ये लगता है यू नो बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू फिटनेस, मुझे अभी भी यही लगता है कि जितनी बार आपको मोटिवेशन लो हो रहा हो, आप कोई भी एक छोटा सा क्लिप या कोई भी एक छोटा सा वीडियो, इतने तमाम तरीके के पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखो और आपके मन में अपने आप ही आएगा नहीं आई हैव टू डू इट. जिम रॉन इज देयर, बहुत पुराने ज़माने के. और सबसे इंटरेस्टिंग तो जो आपके ये आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, जिनका सबसे पुराना 1950s की एक किताब है. What is that old book? यार, I've forgotten the name. See, this is what happens when you become old, you forget. But nonetheless, उनकी जो किताब थी उसको मैं अभी भी, वो पुरानी बिल्कुल फटी हुई हालत में मेरे पास वो किताब पड़ी हुई है और मैं उसको अभी भी रीड करती हूँ. I'll put it in the comments. I will actually, sorry, मेरे दिमाग से उधर गया है. But I will put it in the comments. For sure. So I think you just have to find out what it is that is motivating you every day. Correct. So अपने अंदर एक वो मोटिवेशन खुद लेकर आनी पड़ती है. Right now, ma'am, what are you binge watching on Netflix or Prime? Or what thing is you are? Okay, I watch a lot of women-centric things. So मैंने अभी एक series खत्म की है, The Better Sister on Prime Video. अच्छा. This I saw last night because मुझे नींद नहीं आ रही थी और वो it had a lot of law का angle on it, so मैं वो देख रही थी. और उससे पहले मैंने देखी एक सीरीज साइरेंस करके. So somebody recommended me. These are like funny, not really funny but very drama oriented. वो ये वाली वो होती है जब मेरे को अपना मन करता है कि मेरे को अपना दिमाग नहीं लगाना, anything which is going on, और मैं शायद अपनी किताब पढ़ रही होती हूँ या कुछ पढ़ रही होती हूँ, just to hear the human voice. Industry. Ma'am, going ahead almost to the end of this very good conversation, ma'am, young lawyers के लिए what is your two advice कि मतलब they should take care of before coming into the practice? Before coming into the practice का तो मुझे पता नहीं, because I don't think मैंने इतना प्लान करके प्रैक्टिस शुरू किया था. बट मुझे अभी भी लगता है कि you should not give up. Giving up is the most easiest thing that you can do. Challenges तो लाइफ में हर चीज़ में आएंगे. आप जिस दिन भी, whenever you are born till the last day that you are breathing your last breath, challenges will every day be there. It is just how you overcome it. And you will face a lot of it, because you look at it now, the population has exploded, the competition is huge, and you will have to survive every single day. तो अगर आपको सर्वाइवल मोड में जाना है तो आपको अपने को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. और
दूसरी चीज़ जो हमारे प्रोफेशन में भी बहुत होती है और लाइफ में भी बहुत होगी, वो ये है कि आप अपने फेलियर्स को किस तरीके से टैकल करते हैं। वो आई थिंक एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर केस आप नहीं जीतने वाले, कुछ केस आप हारेंगे, बट आप उस केस को हारते वक्त क्या सीख रहे हैं कि क्या आपको जज को एक तरीके से बात करनी चाहिए थी, या आपको आर्ग्यू एक अलग तरीके से करना चाहिए था, या आपको किसी एक पॉइंट पे रुक जाना चाहिए था एंड मे बी देन। कई बार ये भी होता है कि आप बिना कुछ कहे हुए भी आर्ग्यू कर लेते हैं। You know, when you are seeing that you are actually winning a case, don't go about saying unnecessarily because the judge gets irritated. या आपने शायद ड्राफ्टिंग कुछ अच्छी कर ली होती, या आपने कोई लेटेस्ट जजमेंट पढ़ लिया होता। हर केस से आपको सीखना पड़ेगा, अपने हर फेलियर से सीखना पड़ेगा। लर्निंग इज एवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लर्निंग फ्रॉम लाइफ। किताबों से तो हर कोई पढ़ रहा है, यू नो, ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली इक्वल विद रिस्पेक्ट टू दैट, बट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस एक्चुअली चेंज यू। I completely agree. So, ma'am, what kind of a person you are कि रात भर जाग के midnight oil या सुबह सुबह 5 बजे उठ के केस की तैयारी? मेरे ख्याल से आई हैव नेवर बीन अ नाइट पर्सन। मैं 9:30-10 बजे तक सो जाने वाली व्यक्ति हूँ, तो मैं 4 बजे उठ के ही अपनी फाइल्स पढ़ती हूँ। लेकिन क्योंकि वी आर ऑल्सो ड्राफ्टिंग इट, तो मैंने उस वक्त भी पढ़ा होगा, फाइलिंग के वक्त भी पढ़ा होगा, और फिर जब वो मैटर लग रहा होगा तो मैंने उस वक्त भी पढ़ा होगा। तो मैं 2-3 बार फाइल पढ़ चुकी होती हूँ, इट बिकम्स ईजियर। और आप जब एक फोरम में हमेशा से प्रैक्टिस करते रहते तो आपको पता है कि जज आपसे क्या सवाल पूछने वाला है। True, that is there. So, ma'am, what is one of the most wildest या weirdest expectation of the client from you? कि मेरे बस आप इसको पहली हियरिंग में जिता दीजिए, आगे कभी कुछ करने की जरूरत न पड़े। आई थिंक दोज आर दैट इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द क्लाइंट्स, यू कैंट रियली हेल्प इट। एंड सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को लगता है, because out of 10 matters, if 8 matters are getting dismissed and only 2 matters they are issuing notice, the probability also of admission of a matter is so difficult. Very difficult to. Last 2 questions. Sure. So, who is one of the lawyer which you look up to, and you are, if you get 10 minutes with him or her, that what will be the conversation about? मेरे जो फेवरेट लॉयर्स हैं वो मीनाक्षी अरोड़ा मैम। शुरू से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सपोर्ट इन द सेंस दैट मैं अपना पहला मैटर भी उनको मैंने ब्रीफ किया था, और तब तो मेरा और उनका ऑफिस एकदम आमने सामने हुआ करता था इस ज़माने में। अच्छा। तो उनसे काफ़ी मेरी बातचीत होती थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक, एंड शी वॉज द वन दैट आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज नोबडी इन द सुप्रीम कोर्ट कॉरिडोर। She, and at that point in time, Justice Indu Malhotra was also a practicing senior advocate. तो इन दोनों लोगों को हम सुप्रीम कोर्ट की कॉरिडोर में भागते हुए देखते थे उस ज़माने में। तो एक लगता था कि नहीं, ऐसे ही हमें भी बनना है। या वो अगर कहीं किसी कोर्ट में जाके आर्ग्यू कर रही होती तो हम भी पीछे से भाग के जाते थे देखने के लिए कि कैसे वो आर्ग्यू कर रही है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दोज आर द लिटिल थिंग्स हैं। अब उस समय में इतना आई डोंट रिमेंबर कि इतना पॉडकास्ट था या यूट्यूब पे था। यूट्यूब पे केवल एक रेन मेकर करके चैनल होता था, जो कि अब जो गोपाल शंकर नारायण सर जो कि सीनियर एडवोकेट है, उनका उस ज़माने में था। और मैंने पहली बार जस्टिस इंदु मल्होत्रा का इंटरव्यू उस पर देखा था जो उन्होंने लिया था, एंड इट वॉज, आई थिंक वो इंटरव्यू मैंने कम से कम 100 दफ़ा देखा होगा उस ज़माने में। सो मीनाक्षी अरोड़ा मैम इज़ लाइक, शी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज पर्सन दैट आई हैव इन द सुप्रीम कोर्ट कॉरिडोर्स। तो मेरे को कोई भी परेशानी होती है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैं उनसे ज़रूर बात करती हूँ। बट दैट इज़ अ कॉन्वर्सेशन, बट दैट्स अ रिलेशनशिप दैट आई ऑल्सो शेयर विद अ लॉट ऑफ अदर सीनियर एडवोकेट्स। डॉक्टर सिंघवी से Mr. Siddharth Luthra, I think he is one of the best that I have right now, who's been very very helpful and बहुत प्यार से समझाते हैं, बेटा ये चीज़ गलत है, बेटा जी ये चीज़ सही है, he will tell, बेटा ये चीज़ कहाँ पे, so you feel very good and very happy about how these सही जगह हम लोग धीरे धीरे पहुंच। और उन लोगों ने काफ़ी सिखाया है मुझे। अब मुझे अभी भी याद है, मैं पहली बार जब मिस्टर लूथरा को ब्रीफ करने गई थी तो मैं अपने साथ वो SCC की किताब लेके गई थी। अब मेरे को उस पर फ्लैग लगाना था बिकॉज देयर वाज अ पर्टिकुलर पैराग्राफ जो कि मुझे लगा कि उसमें फ्लैग लगाते थे। तो मैंने वो फ्लैग ऐसे लगाया कि वो जो स्क्रिप्ट था ना उसके ऊपर आ गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम गलत लगा रही हो, क्योंकि ये क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स तुम जब ये निकल जाएगा तो वो जो स्क्रिप्ट है वो भी प्रिंट निकल जाएगा।
तो जब वो प्रिंट निकल जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर आप जब बाद में यूज करोगे. So those little things, you know, those attention to detail, you know, those things that they teach you. Those things make them the senior which they are And, to. you know, they have no, ऐसा कोई attitude नहीं, कुछ नहीं. They just treat you like, you know, you are that person who needs to learn, and they are willing to teach you. That is so good. So, ma'am, one quote which you abide by, which you are like, this is my quote. हाँ, I think अगर मैं कभी टैटू कराऊंगी तो वो ज़रूर होगा दिस टू शैल पास, बिकॉज आई थिंक दैट जितनी बार लाइफ में ख़राब चीज़ें होती हैं आपको हमेशा ये याद रखना है कि दिस टू शैल पास. ये एक समय है, और जब समय अभी थोड़ा आपका ख़राब चल रहा है तो ये ख़राब समय भी बीतेगा और अच्छा समय भी आएगा. So, one last question to ma'am. Ma'am, one dream, legal or non-legal, which you want to really chase as of now, which you want to achieve as of now. ड्रीम आई डोंट नो रियली, बट मेरी एक ड्रीम जो बहुत सालों से चल रही है वो है कि मैं 100 किलो का वो उठा डेडलिफ्ट कर सकूं, बट दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. मैं 80 85 90 तक पहुंच चुकी हूँ, लेकिन वो 100 किलो तक नहीं पहुंच पाई. सो दैट्स वो फिर वो ब्रेक आ जाता है तो छूट जाता है, बट दैट्स जस्ट फिटनेस वाइज. और एक पुलअप करने का बड़ा ड्रीम है मेरा, वो भी नहीं हो पाया अभी तक. बट अकेडमिकली या मतलब करियर के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं उस स्टेज पे पहुंच पाऊँ जहाँ पे आई विल नॉट हैव सो मच एंग्जाइटी, विच आई थिंक इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर ऑल ऑफ अस हु आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, चाहे सीनियर एडवोकेट्स हो, चाहे हमारे जैसे AORs हो, चाहे जो नए बच्चे आ रहे हैं. मेरी अपनी लाइफ की तमन्ना ये है कि हम वो एंग्जाइटी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकें. क्या मतलब, sorry to continue it, but as a new entrant in it or just with an experience of 3 to 4 years, like we feel it when we are going to argue. like वो थोड़ा सा अंदर से लगता है, थोड़ा एंग्शियस. वो सबको लगता है. मतलब हाँ, मैं वही पूछा कि अभी भी आपकी स्टेज पे या 100% होता अच्छा है. कई बार आप कोई डिफिकल्ट मैटर आर्ग्यू करने जा रहे होते तो आप देखना आपका हार्ट रेट या 120 अचानक से पहुंच जाएगा. दीज थिंग्स हैपन. मैंने कितने सीनियर एडवोकेट से पूछा कि सर आपको अभी भी एंग्जाइटी होती है, तो कहते हैं हाँ कभी कभी होती है. सो इट्स अ वेरी नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ. But why don't like most of the advocates talk about it? Because I think this will help a lot of young lawyers. I guess. See, I think I'll tell you उसका ट्रिक क्या है उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने का. उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि अगर आपको पता है कि कौन से कोर्ट में आपका मैटर लग रहा है, 2-3 दिन एडवांस में अगर आपको पता चल जाए, सुप्रीम कोर्ट में आपको टिपिकली पता चल जाता है, तो आप उस जज को पहले से ही वर्चुअली वॉच करना शुरू कर दीजिए कि वो किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं या वो किस चीज़ पे इरिटेट हो रहे हैं. क्योंकि एक जज जो है वो 60-70 मैटर रोज कर रहा है, वो ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट फ्रिक्शन दैट यू हैव वो आप कम कर सको, राइट. उनका कंडक्ट देखिए, उसके बाद जो सीनियर्स उनके सामने अपेयर हो रहे हैं उनका क्या कंडक्ट है वो देखिए. सो अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑब्जर्वेशन. और दूसरा, अगर आपने अपना मैटर अच्छे से पढ़ रखा है तो ऐसा मतलब थोड़ी बहुत एंग्जाइटी इनिशियल तो होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिवियर वाली एंग्जाइटी नहीं होगी. एंग्जाइटी तभी आपको करेगी बहुत ज़्यादा अफेक्ट जब आपने पढ़ा नहीं होगा और आपको लगेगा मुझे पता नहीं है. अगर उन्होंने मुझसे ये सवाल, कोई भी सवाल पूछ लिया तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है. Makes sense. So I think it's your preparation which eases off your anxiety. Right. So thank you so much, ma'am, for your time and your this insight. I really enjoyed this Me conversation. too. I also had so much fun. Thank you so much, everyone. So I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो सुनने में. So आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पल्लवी मैम के साथ उनकी जर्नी जानी कि हाउ फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इन्वेस्टमेंट बैंकर से to the law, the challenges which she faced, the mentors which she worked around with, and also the important aspect, the key takeaway from this whole conversation for me is that preparation, the learning and hustle is actually the key. See, anxiety, mental health issues, ये सब हम लोग face कर रहे हैं. We should talk about it, address it, but we should fight it. We really need to work around it, and I really thank ma'am to give us time and actually talk about all of this. If you like this video, please like, share and subscribe to Vakil Vani. Thank you.